Good morning students. Today we are going to discuss close packed structure. In previous video I talked about unit cells. Now unit cells have parameters and different types of unit cells I have described. These different type of unit cells, they pack themselves in various different ways to form various different type of crystals. Otherwise only similar type of crystals were present. Now we will see how they are going to pack, and the main purpose in this packing is that they should leave minimum space, as tightly as possible they should pack. सबसे पहले we will talk of close packing in one dimension. Close packing in one dimension का मतलब है we have three axes x, y, z एंड किसी भी एक एक्सेस पे भी आवर स्फीयर्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं इमेजिनरी, they will arrange themselves. Here we say they all align in a x-axis one dimension. Now you just look here, each sphere is touched by two particles. Nearest neighbors are two spheres, so this is their coordination number. Coordination number is number of nearest neighbor touching the sphere. Coordination number is 2. Now next we will see if I want to place a second layer of spheres, then there are two methods, and this will be we will study in close packing in two dimensions. These are of two types. We will see. In these methods we can arrange in first type spheres just aligning vertical as well as horizontal, and this type of alignment will give rise to square close packing. This will be more clear when you see in a diagram. स्क्वायर क्लोज पैकिंग में आपके ये आ गया एक स्फीयर, दूसरे स्फीयर जस्ट इसके ऊपर अलाइन करेंगे, एंड इन दिस वे अ स्क्वायर विल बी जनरेटेड. हियर यू सी देयर इज परफेक्ट अलाइनमेंट. अगर हम फर्स्ट लेयर को कहते हैं ए, तो सेकेंड लेयर विल बी also known as A. So we call it A type packing. Vertical, horizontal alignment. You can see in a diagram, and arrangement is known as A type. और अगर हम यहाँ पे देखें तो आप देखते हैं each sphere is touching four other sphere. 1, 2, 3, 4. It means coordination number is 4. Coordination number is here 4. Then अगर हम इनके सेंटर्स ज्वाइन कर दें तो हमें शेप मिलेगी स्क्वायर की. That's why it is called square close packing. So just revise quickly the points. In this arrangement, each sphere is in contact with four of its neighbor. Therefore, the coordination number is 4. One dimension we have coordination number 2. Then the centers of these four immediate neighbor spheres are joined. ये आपने इनको join किया है, and a square shape is generated. Therefore, this packing is called square close packing. तो ये तो हमारा एक मेथड है स्फीयर्स को प्लेस करने का. देयर इज अनदर मेथड वेयर वी कैन प्लेस सेकेंड लेयर इन द डिप्रेशन. ये जो डिप्रेशन है इन पे प्लेस करेंगे, और तब हमें अरेंजमेंट एक अलग मिलेगा, बिल्कुल डिफरेंट नेचर का. लेट्स सी फर्दर. यहाँ पे आपने पार्टिकल्स को डिप्रेशंस में प्लेस कर दिया.
एंड यहाँ आप क्या देखेंगे, देयर इज नो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट. एज यू कैन से दिस इज ए टाइप, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, बी टाइप. थर्ड लेयर अगेन इट इज अलाइंड विद द फर्स्ट लेयर, तो वो हो जाएगी ए लेयर. एंड फोर्थ लेयर इट इज अलाइंड विद द सेकेंड लेयर, तो वो आपकी हो जाएगी बी लेयर. यू जस्ट वॉच इट. वी विल कॉल दिस अरेंजमेंट ए बी टाइप. We will call this AB, again A, and this one is B. So arrangement is known as AB type, and we call it hexagonal close packing. अभी आपको समझाते हैं कि इसे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्यों कहा जाएगा, क्योंकि अगर हम इनके सेंटर्स को, स्फीयर्स के सेंटर्स को ज्वाइन करें नियरेस्ट नेबर के, तो शेप जो अराइज होगी वो होगी हेक्सागोन. Therefore it is known as hexagonal close packing and arrangement AB type. Then again it is in a contact with 1 2 3 4 5 6 sphere. Therefore coordination number is 6, and because it is giving a hexagonal shape, it is known as hexagonal close packing in 2 dimension. अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो हम क्या देखते हैं, हमारा जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग है उसमें वैकेंट स्पेस इज मोर, देयरफॉर इट इज़ नॉट इकोनॉमिकल. पैकिंग एफिशिएंसी इज जस्ट 52%, जबकि हेक्सागोनल में एफिशिएंसी ज़्यादा है, खाली जगह कम है. इट है 60.2% एफिशिएंसी. एंड कोऑर्डिनेशन नंबर का डिफरेंस आपको पता है, वहाँ पे स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर है 4 एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर है 6. तो these two difference you can write if they ask you to write the difference in square close packing and hexagonal close packing in 2 dimension. अब हम जो बात करेंगे आपकी 3 डायमेंशनल पैकिंग में लेयर्स को हम कैसे प्लेस कर सकते हैं. पहला है स्क्वायर क्लोज पैकिंग. इट्स वेरी सिंपल. आप स्क्वायर क्लोज जो जनरेट हुआ था उसके ऊपर जो थर्ड लेयर के स्फीयर्स हैं वो प्लेस करेंगे, तो आपको एक स्क्वायर जनरेट होगा एग्जैक्टली अबव वन अनदर. परफेक्ट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट. सो this square close packing in 3 dimension is not efficient. हम अपनी स्टडी मेनली फोकस करेंगे क्लोज पैकिंग इन 3 dimension from hexagonal close packing in 2 dimension. उसमें जो आपके AB लेयर है उसमें हम थर्ड लेयर को कैसे प्लेस करें, तो हमें कौन सा अरेंजमेंट मिल सकता है. तो लेट्स से 3 dimensional close packed structure which generated by placing in hexagonal close packed structure. Here your spheres are, you can see on the board, and we will see the arrangement. What we see spheres are placed in the depressions, and that vacant space is known as void. Vacant space को हम क्या नाम देते हैं, voids. And आप देखेंगे there are 2 types of voids, upward triangular voids and downward triangular voids. आपके पास ऑप्शन क्या है, आप जो अपनी थर्ड लेयर प्लेस करेंगे या तो इसके ऊपर प्लेस करेंगे. अगर हम इसके ऊपर प्लेस करेंगे तो आपके
ये वाले वॉइड्स खाली रह जाएंगे। और अगर आप इसमें प्लेस करेंगे, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, तो आपके ये वॉइड्स विल रिमेन वेकेंट। सो यू आर प्लेसिंग योर second layer like this. Yes, is it clear from the diagram? And what you observe, एक टाइप के voids covered हैं और दूसरे टाइप के voids vacant रह गए हैं, और अल्टीमेटली हमें इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा। और हम स्ट्रक्चर देखते हुए अगर ध्यान दें तो आपके ये एक स्फीयर है और नीचे 3 स्फीयर है, तो आपको शेप कैसे जनरेट होते हुए दिख रही है? इट इज़ लाइक ए 1 2 3 और इस पे आपने एक चौथा स्फीयर रख दिया है। इस तरह का जब आप अरेंजमेंट देखते हैं, जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, ऊपर पिंक और नीचे ग्रीन, तो आपको जो नया वर्ड जनरेट हुआ है उसको आप कहेंगे टेट्राहेड्रल वर्ड। इनके सेंटर्स को जब हम जोड़ते हैं तो दे विल हैव एन शेप ऑफ टेट्राहेड्रल। while another type of void are also generated, 3 spheres below and 3 spheres above, like this 1 2 3 1 2 3। और ये आपको अपोजिट स्टार्स जैसे कंबाइन होते हैं वैसे अपीयर होंगे। आप जब इनको ज्वाइन करेंगे तो दे विल अपीयर लाइक ऑक्टाहेड्रल void। यू कैन सी, अगर मैं इनके सेंटर्स को ज्वाइन कर देती हूँ तो कुछ इस तरह की शेप आपको दिखाई देगी। दैट इज़ लाइक octahedral void। तो there are 2 types of void, octahedral void, tetrahedral void। This I will again explain। Now आपके नेक्स्ट लेयर जो है उसको हम कहाँ प्लेस कर सकते हैं? क्वेश्चन अराइजेस, या तो हम उसे टेट्राहेड्रल void पे प्लेस कर सकते हैं या उसे ऑक्टाहेड्रल void। और आपके इस तरह नेक्स्ट लेयर को प्लेस करने पे आपको 2 डिफरेंट टाइप के अरेंजमेंट्स मिलेंगे। अगर आप टेट्राहेड्रल void पे अपनी 3rd लेयर प्लेस करते हैं तो इट विल नोन एज AB टाइप, क्योंकि आपकी जो नेक्स्ट 3rd लेयर आ रही है वो एग्जैक्टली फर्स्ट लेयर जैसी होगी। तो आप उसको क्या कहेंगे? AB टाइप, या उसे हम कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। वहीं पे अगर मैं आपके 3rd लेयर यहाँ प्लेस कर दूँ ऑक्टाहेड्रल void पे, तो वो ना तो A से अलाइन करेगी ना वो B से अलाइन करेगी। दैट विल फॉर्म अ 3rd लेयर विच वी कॉल्ड इट C। तो उस पैकिंग को हम बोलेंगे ABC टाइप पैकिंग, या उसको हम बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग। और बाद में अभी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, इट इज़ एल्सो नोन एज फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग अगर आप ऑक्टाहेड्रल void पे प्लेस करेंगे। लेट्स सी इन अ डायग्राम फर्दर। आप यहाँ देख सकते हैं देयर आर 2 डिफरेंट मोर स्ट्रक्चर्स अराइजेस। यस, हियर इट इज बाय कवरिंग टेट्राहेड्रल voids। टेट्राहेड्रल voids पे जैसा कि अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आपकी 3rd लेयर विल बी एग्जैक्टली अबाउट द फर्स्ट लेयर AB। तो दिस टाइप ऑफ पैकिंग इज कॉल्ड AB। इज इट क्लियर? एंड इसको आप क्या बोलेंगे? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। देन अगर हम ऑक्टाहेड्रल voids को कवर करते हैं तो हमें पैकिंग आपकी दूसरी तरह की मिलेगी, जिसको आप देख लीजिए क्या नाम देंगे? क्यूबिक
क्लोज पैकिंग। आपने यहाँ ऑक्टाहेड्रल वॉइड ज्वाइन किया है और आपको इस तरह की पैकिंग मिलेगी। इसको हम एक और बता रहे हैं नाम, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। बिकॉज अगर मैं आपको फेस सेंटर्ड का डायग्राम ध्यान होगा या फिर से बना देते हैं, पर ओरिएंटेशन मैं अलग रखूँगी। आप ये देखिए बेटा, ये आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग का डायग्राम है विथ पार्टिकल्स एट ऑल द 8 कॉर्नर्स along with particle present on each face। ये आपका है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। और इसको अगर मैं थोड़ा सा मूव कर देती हूँ, ओरिएंटेशन चेंज कर देती हूँ, तो आपको ये इस तरह मिलेगा। लेट्स सी, अब आप इनको ज्वाइन कर देंगे तो ज्वाइन करने में आपके पार्टिकल्स किस तरह आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और साथ में आपके हैं फेस। आपके क्या हैं, फेस। तो फेस को हम कैसे करेंगे, इस तरह। तो आप क्या देखेंगे, अगर मैंने ओरिएंटेशन चेंज कर दिया, एक पार्टिकल और ये पार्टिकल ये आपस में अलाइन कर रहे हैं। यहाँ हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 पार्टिकल्स हैं। तो ये आपकी क्या हो गई, नेक्स्ट लेयर, और ये आपकी क्या हो गई, थर्ड लेयर। ये अलाइन नहीं कर रही, तो ये क्या हो गई, A B C। तो ये भी आपका हो गया A B C। तो ये क्योंकि फेस सेंटर्ड जैसे दिख रहा है, हम इसको क्या बुलाते हैं दूसरे नाम से, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो अगर मैं आपको बोलूँ राइट द डिफरेंस बिटवीन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड क्यूबिक क्लोज पैकिंग, तो आप डिफरेंस में क्या लिखेंगे कि यहाँ पे हमें जनरेट होता है बाय प्लेसिंग थर्ड लेयर ऑन द टेट्राहेड्रल वॉइड, और क्यूबिक क्लोज पैकिंग होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड कवर करने पे। हेक्सागोनल को हम बोलते हैं ए बी टाइप। ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे रखने के बाद हम उसे बोलते हैं ए बी सी टाइप। दोनों की पैकिंग एफिशिएंसी सेम है, 74%। दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम है, 12। आपके 6 फेस और एक लेयर पे हैं, ऊपर 3 नीचे 3, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 12। तो दिस ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस tetrahedral void, octahedral void and packing efficiency. Till then, thank you. Take care of your health.